Hello and welcome. I'm Rajat Kane. You're watching the Aspirants on the Edge. इस बार के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं होम सिकनेस की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, खास करके ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पे एस्पिरेंट्स को अपने घर से दूर रहना पड़ता है। और क्योंकि इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि ये पहले अटेम्प्ट में बहुत कम ही निकल पाता है, तो इसमें कई सालों तक एस्पिरेंट्स घर से दूर रहते हैं। उनको चाहिए एक सूटेबल इकोसिस्टम, उनको एक्सेस टू लाइब्रेरी भी चाहिए, उनको ट्यूटोरियल्स का भी एक्सेस चाहिए। तो इसके लिए अक्सर हम देखते हैं कि कई शहरों में हब्स बन जाते हैं एस्पिरेंट्स के। दिल्ली में की अगर बात करें तो राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, नोएडा, लक्ष्मी नगर, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें एस्पिरेंट्स एक तादाद में देखने को मिलते हैं। जानते हैं इस एपिसोड में उन एस्पिरेंट्स से कि अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ होम सिकनेस उससे कैसे जूझते हैं और कैसे और बेहतर तरीके से उससे उभर कर आते हैं। जाइएगा मत, देखिए इस एपिसोड को मेरे और मेरे साथी वरुण के साथ। Hey guys, hi. Hello. Hi Rajat, hi Varun, Hardik. So let me start with you, Rajat. Personally, I don't feel that I suffer from homesickness. That is because मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ and I was in a boarding school from 5th standard onwards. उसके बाद कॉलेज भी हॉस्टल में, and then here also we were fortunate enough to have a community supporting hostel also here. It's known by Gramin Yuva Kendra. So I was associated with that organization also. So it's like we are from the same background, same community, and most of us enjoy our company also. We discuss together, we study together, and we hustle together. So it's only rarely that we find that we feel homesickness. And again, I feel another reason for this is because there's not much cultural dissimilarities between from where I come from and in this Delhi. So I don't feel it is that much of a big issue, but sure, many students would be facing it. Secondly, like when you go home and when you have to come back here, so is there a kind of a withdrawal ki okay fine, I have to go back to my hub now, and now since I'm home, so possibly मैं एक आध दिन और रुक जाता. So do you have that feeling, that pangs? Going back home does give me a clarity again about what my goals are, and again we feel more clear about our background, so what needs to be done. Here ORN particularly, I feel that there are few distractions, so they play a role, and there is an attracting point also towards the old Rajendra Nagar, and again the home also attracts us on the festivals and all. But overall I feel it's a balanced thing. Like parents keep calling us, so once in a while we do visit our home place, but again we enjoy this place more. You came here for your dreams or pursue your dreams, so build a good environment, good friends, and infuse your dreams with that perseverance and consistency. You don't feel homesickness after all. आप कहाँ से हैं और कब आए हैं? कितना टाइम हो गया आपको मैं यहाँ पे? राजस्थान से हूँ। अच्छा। और मेरे को यहाँ पे अराउंड 3 years हो गए। ओके। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि 3 साल से आप यहाँ पे हैं, सो हाउ इम्पोर्टेंट इट गेट्स फॉर यू? पहली बात तो ये है कि आई नो कि बीइंग अ एस्पिरेंट देयर इज़ अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। दूसरा ये भी होता है कि देयर आर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल जिस पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिसाइड्स यूपीएससी। नाउ एक फैक्टर जो होता है, कम्युनिटी का फैक्टर जैसे बताया रजत ने, एक फैक्टर हो गया आपका अपना पीयर ग्रुप्स हो गए, फिर दूसरा पेरेंट्स, फैमिलीज़, प्रेशर भी होता है, एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। तो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन द टू, प्रेशर और सपोर्ट के बीच में? आई डोंट थिंक सो। ये जो ड्रीम्स हैं ये आपके खुद के हैं, तो आपको मतलब उसमें यदि ये फील हो रहा है, होम सिकनेस फील हो रहा है या कुछ अनसर्टेनिटी फील हो रही है, तो मतलब आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने साथ। मेरा ये मानना है, खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो। बट शेड्यूल इतना हेक्टिक और इतना वो कंसिस्टेंट है कि आप फील ही नहीं कर पाओगे होम सिकनेस। कोई आपके दोस्त वगैरह रहे हों
if any of you in a group encounters कि I'm feeling homesick, so how do you counsel them? At onset of preparation, many of my friends feel homesickness, but later on they make friends and roam around this ORN, and vibes of ORN doesn't feel them. You also agree that many of your friends do feel homesick, and sometimes they would require some sort of a counseling, or for that matter, support from you guys. Oh yeah, absolutely. There are times when social interactions increase a lot, and then maybe studies also put a lot of pressure on us. So we do find some solace in our homes. It's a break from what you'll call a New York minute here. So everything moves really fast. We have to complete our targets, completing books, tests and all, everything. It's compiled together. So it does put a pressure on us. And home does provide some nurturing environment, good food. And psychologically we feel in a safer space at our home also. So yes, every now and then, I will say in 2 to 3 months, we do feel that we should visit our home and get reconnected to what we really are, how our parents think about our future, how we seek to support them in our whatever future endeavors. So yes, it is needed, a strategic break, what you may call. Any closing thoughts, Hardik? No. Right. Thank you both of you for articulating your thought. It's really important. तो जैसा हमें यहाँ पे दो एस्पिरेंट्स रजत और हार्दिक ने बताया कि एक बैलेंसिंग एक्ट होती है, होम सिकनेस लगती है, लेकिन जो लार्जर गोल है, जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए यहाँ पे आए हैं, वो अकम्प्लिश करना ज़रूरी होता है. आगे भी हम एस्पिरेंट से बात करते रहेंगे, उनके अपने ओपिनियंस खासकर होम सिकनेस, टारगेट्स, इनको लेके आपको बताते रहेंगे. जाएगा मत. यहाँ पे नेचर ऐसा है कि कई सालों तक एस्पिरेंट्स को रहना पड़ता है. तो हाउ डू यू बैलेंस दैट? कैसे होम सिकनेस को मैटल करते हैं आप लोग? मोस्टली हम एक फ़िक्स टाइम रखते हैं घर वालों से बात करने का, क्योंकि अभी इधर का एटमॉस्फेयर एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है और हमें चिंता भी होती रहती है कि घर वालों की क्या कंडीशन है, उनके साथ क्या चल रहा है. हम यहाँ पे कट आउट होते हैं एग्ज़ाम स्टडीज़, क्योंकि ये यूपीएससी डिमांड ही करती है कि तुमको कट आउट होना पड़ता है. लेकिन हम अगर एकेडमिकली अगर सोचें तो हमारे एकेडमी में ये एक सब्जेक्ट ही है, इथिक्स. तो इथिक्स हमको इमोशनल इंटेलिजेंस समझाता है कि यार आप इमोशनली आपके इमोशंस को बर्नआउट ना होते हुए आप कैसे मैनेज कर पाते हो. तो एक 2 साल की जर्नी में हमने ये एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है कि जैसे हम एक फ़िक्स टाइम रखते हैं कि 5:30 to 6:30 हम घर वालों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अभी उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे, और वो एक अलग माहौल होता है. वो एक दिन का एक स्पेशल टाइम होता है जिसमें हम बहुत रिफ़्रेशमेंट फ़ील करते हैं. जैसे कि मेरा भैया अभी प्रोफेसर है, तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं हमें. तो वो एक होम सिकनेस का मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपके जो बड़े भाई है, जो आपके क्या बोलते हैं सिस्टर इन लॉ है, तो उनसे आप कंटिन्यूसली बात करते रहे. जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते रहोगे तब तक आप ये होम सिकनेस से फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार एक मेंटल सिचुएशन और मेंटल एक स्टेट आती है, उस टाइम पे आप थॉट्स और बाकी सब से बर्नआउट होते रहते हो. तो जितना ज़्यादा आप उनसे बात करोगे यार, एक पढ़ाई का ही एक इसे ड्यूरेशन मान सकते हो कि वो 1 आवर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में. अगर आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 1 आवर आपको निकालना ही पड़ेगा. तो उससे आपको एक बुक से हटके आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता रहेगा कि घर वालों का वो जो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत बड़ी लाइफ देखी है. आप एक बुक एकेडमिक अगर भागते रहोगे तो आप सक्सेस कम रेयरली पाओगे. तो अगर उसको बैलेंस कर लिए तो आप आपके लाइफ में भी सक्सेसफुल बन जाओगे. That's a brilliant thought. What about you? What do you have to say about homesickness? I think your friend summarized really well. I will just add on कि like मेरे फ्रेंड ने मतलब सब कुछ बता ही दिया है कि अबाउट दी होम सिकनेस. बट मेरा थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव था कि स्टार्टिंग में जब मैं आया था दिल्ली में, तो लाइक स्टार्टिंग के फेस में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं वापस चला जाऊँ या फिर मैं इधर कंटिन्यू करूँ, बिकॉज इट वॉज टू मच. लाइक मतलब मैं घर से मतलब लाइक पहली बार ही निकला था ऐसा पार्ट. बट एज डे बाई डे मैं अभी लाइक काफ़ी 1-2 साल ऊपर हो गए, तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि नहीं, इधर मैंने एक वन टाइप ऑफ फ्रेंड्स बना लिए कि जो मोर देन सिबलिंग्स है मेरे लिए अब लाइक.
तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ रहना ही है। तो अब होम सिकनेस डे बाय डे कम हो गई है। और लाइक घर पे जैसे बात करते हैं, तो जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया कि हम एक शेड्यूल होती है बात करने का, तो बस वही शेड्यूल में हम एक बात कर लेते हैं और उनका कैसा रूटीन है, हमारा कैसा रूटीन, वो शेयर होता है, तो एक अच्छा फील रहता है, एक अच्छा बॉन्ड रहता है फैमिली के साथ। एंड दैट्स हाउ वी मैनेज लाइक स्टडीज़ एंड आवर फैमिली फाउंडेशन ऑल्सो। कितना फ़र्क लगा आपको जब आप पहली बार दिल्ली में आए? सो यू नो डज द कल्चरल डिफरेंस जो हर शहर में, हर स्टेट में, यू नो फ्रॉम एक्स टू वाई डिफरेंस होता है, आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे बट इन अ डाइवर्सिफाइड वे, सो आपको उस डिफरेंस ने हेल्प किया एडजस्ट करने में या कि एक चैलेंज की तरह था वो? लाइक स्टार्टिंग में जैसा आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पे हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर होता है, सब होता है। दिल्ली में इट्स लाइक कॉस्मोपॉलिटन, वी हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल। तो पहले उनके मैंने कल्चर को समझा कि कैसे कि लाइक हाउ दी नॉर्थन पीपल्स आर देयर, हाउ दी सदर्न पीपल्स आर देयर, ईस्टर्न पीपल्स आर देयर। देन डे बाय डे उनके बारे में पता चला कि हाउ दे आर ईटिंग हैबिट्स, हाउ दे आर कल्चर हैबिट्स, हाउ दे मीट देयर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है जो मुझे अपने फील्ड वर्क में भी यूज़ होगा। यही एक्सपीरियंस कि मेरे को लाइक इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग मिलेगी इन फ्यूचर, तो मैं आसानी से रिलेट कर पाऊँगा कि हाउ माई फ्रेंड्स वेर एक्टिंग ऑन दिस पार्ट। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं ये एक्सपीरियंस को यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अब स्टूडेंट्स पढ़ने चाह रहे हैं उनको ये लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, रादर देन बीइंग एट वन पार्ट ऑफ योर स्टेट और एट वन रीजन। दे शुड एक्सप्लोर एंड नो द कल्चर एंड एवरीथिंग। इफ आई गेट चांस लाइक ग्लोबली ऑल्सो, आई वुड लव द सेम पार्ट व्हाट आई लर्न हियर। सो डे बाय डे आई एम एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स हियर। ग्रेट। लास्टली बिफोर लीविंग यू, जो आपका अपना फ्रेंड सर्कल बन जाता है यहाँ पे, एक पीयर ग्रुप बन जाता है, ठीक है, एंड ऑल्सो योर यू नो पीपल एट होम, कितना इम्पॉर्टेंट है वो इकोसिस्टम की कोई नेगेटिव थॉट को फाइट करने के लिए? इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पीयर ग्रुप ही आपकी यहाँ की जर्नी डिसाइड करता है। अगर आपके यहाँ का पीयर ग्रुप अगर अल्कोहल एडिक्शन वाला आपको मिल गया या एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर वाला पीयर ग्रुप मिल गया, तो आप पूरे कम्प्लीटली नेगेटिव साइकिल में फंस जाओगे। अगर आप सीनियर्स के कांटेक्ट में रहोगे या आप कंटिन्यूसली ये सोचोगे कि यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या है, तो आप उस तरीके से आप रिएक्ट करते चलोगे और उस तरीके से आप पीयर ग्रुप का एटमॉस्फेयर बनाते जाओगे और एक कहीं ना कहीं वो होम सिकनेस की एक टेंडेंसी रहती है, उससे फाइट कर पाओगे। लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली की ओर से भी कि वो फैमिली वाले आपको कंटिन्यूसली कॉल करते रहे या एक शेड्यूल के टाइप में कॉल करते रहे, कि जाने कि आपके भी वो स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि हेजिटेट करते हैं, क्योंकि वो फेलियर्स कंटिन्यूसली देखते हैं, तो फेलियर की वजह से वो हेजिटेट करते हैं कि घर वालों को कॉल करें। तो घर वालों भी कॉल बैक करके उनसे पूछने के एक सॉल्यूशंस हो सकता है कि होम सिकनेस से फाइट हो सके। राइट, थैंक यू। नहीं, अगर एस्पिरेंट है, आप घर से दूर है, ऑब्वियसली तो घर की याद आती है, और घर की याद आना, उसको बैलेंस करना अपने पढ़ाई के साथ, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो कहें तो हमें भी याद आती है घर की, घर से दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। आई एम फ्रॉम यूपी, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, तो याद आती है बहुत, और ये बहुत इसको मैनेज करके चलना पड़ता है हमें, घर से रेगुलर बात करना, उनके टच में रहना, मोटिवेटेड रहना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए उस चीज़ को बैलेंस करना कि जो आप लार्जर ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पे सिविल्स क्लियर करने हैं, साथ में इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि शायद पहली बार में नहीं हो पाए। ऑब्वियसली वी वांट कि आप सब लोग का पहली बार में हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो कितना प्रेशर रहता है और क्या उससे भी होम सिकनेस बढ़ती है? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं है, खैर, और लोगों के साथ तो उसमें क्या कहा जाए, पर बैलेंस करके चलना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कैसे बैलेंस करते हो, तो घर पे बात कर लेना और घर से बात करके मोटिवेटेड फील करना और अपनी पढ़ाई को फिर वही प्रायोरिटी समझना, तो इसे मैं बैलेंस कर लेता हूँ मैं, अगर अपनी बात करूँ तो। मैं लास्ट क्वेश्चन कि कितना ज़रूरी है कि यहाँ पे आप लोगों का जो एक इकोसिस्टम बन जाता है, यहाँ पे दोस्तों का सर्कल कितना ज़रूरी हो जाता है एक काइंड ऑफ आपका एक सोशल ग्रुप के लिए? हाँ, यहाँ ये तो आपने सही कहा कि यहाँ का सोशल ग्रुप बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अगर अपनी वननेस की फीलिंग दिलाता है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग दिलाता है, लव्ड वंस की फीलिंग दिलाता है, तो यहाँ के दोस्त ही हैं जो कि सोशल ग्रुप है, जो कि हमें घर से एक अगर घर की ज़्यादा याद है तो चलो ये होता है चलो मैं ज़्यादा याद है, चलो बाहर घूम लें, दोस्तों के साथ चल लें, तो वो ग्रुप बहुत सपोर्ट करता है। और इवन ग्रुप सपोर्टिव होनी चाहिए, जो ग्रुप सपोर्टिव हो कि चल कोई नहीं, आजा बाहर चल रहे हैं, चाय पी लें, तो इससे मन थोड़ा हमारा वो रहता है कि खुश रहता है, क्योंकि
घर की याद दिलाने में कम उसमें फैक्टर प्ले करता है। कितनी बार फ़ोन करते हो घर में हर रोज़? 2-3 दिन में 1-2 बार। अच्छा, हाँ सफिशिएंट रहता है वो? हाँ सफिशेंट रहता है। बाकी घर से भैया लोगों का फ़ोन आता रहता है। मैं ऐसे फ़ोन करता हूँ तो 2-3 बार बस 3 दिन में, बाकी उधर से फ़ोन आता रहता है, बात होती रहती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की, यूपीएससी हो चाहे स्टेट सर्विसेज हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें एक इकोसिस्टम बन जाता है कि आपको अपने जहाँ पे एक ट्यूशन्स हैं, जहाँ पे क्लासेस हैं, जहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं, वहीं पे प्रिपरेशन करना शायद बेटर रहता है। आइसोलेशन में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शायद उतने अच्छे से नहीं हो पाती, इसीलिए हम देखते हैं हब्स बन जाते हैं एस्पिरेंट्स के। साथ ही हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में कि जो होम सिकनेस है कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कैसे बैलेंस होता है होम सिकनेस अलॉन्ग विद द लार्जर गोल ऑफ क्लियरिंग दिस हाईली कंपेटिटिव एग्ज़ाम। तो मेरे साथ एक एस्पिरेंट्स ग्रुप है, जानते हैं उनसे। आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट। कितना इम्पॉर्टेंट है होम सिकनेस को बैलेंस करने से हम लोग बात कर रहे हैं? एक्चुअली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जैसे जब आप आते हो इस एग्ज़ाम में, तो इवन जब आप प्रीलिम्स लिखते हो तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको नॉलेज आप 1-1.5 साल में गेन कर लोगे जो सिलेबस होता है। बट आप कहीं ना कहीं डरे होते हो, कहीं ना कहीं डर लगा रहता है और आप घर से बाहर होते हो, आपको खाना नहीं मिलता अच्छा। ये सब बातें लगेंगी बहुत छोटी, बट ये अगर आप डेली आप इसको रूटीनाइज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। और फ्रेंड्स को मतलब हम लोग बहुत दिन बाद दोस्त बने, मतलब हम लोग प्रीलिम्स का टेस्ट साथ में दिए तब जाके दोस्त बने। बहुत लोग सारे ऐसे हैं जो अकेले तैयारी कर रहे हैं, तो वो सोशल फैक्टर आपको लगेगा कि पढ़ाई में क्या ज़रूरत है, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, आपको जीने के लिए बहुत इम्पैक्ट करता है। एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ अबाउट यू, डू यू एग्री अपने दोस्त के साथ इस बारे में? Yeah, I agree with him, but I'm not facing this problem because I live with my parents here in Delhi. मैं हर संडे आता हूँ इनसे मिलने, थोड़ा स्ट्रेस कम करने। जो प्रिपरेशन हम 6 दिन या 5 दिन जितने भी दिन पढ़ते हैं, तो संडे को मैं आके इनसे मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना, मतलब स्ट्रेस रिलीज़ होता है थोड़ा पढ़ाई। मेरे को इसका कंडीशन बहुत सही लगता है कि इसको घर का खाना, घर का सब मिल रहा है, ऑन द टॉप ऑफ इट एक एनवायरनमेंट मिल रहा है। और यहाँ आने का आपने अभी जो इंट्रोडक्टरी बोला उसमें आपने ये बोला कि होम सिकनेस इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, बट यहाँ आने का फ़ायदा ये है कि आपको एक सिमिलर माइंड से मिलने का मौका मिलता है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ही इज़ ऑल्सो ऑल ऑफ अस। सो कहीं ना कहीं एक लेवल पे कनेक्ट करते हैं अपन और उससे एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है। और इससे मैं थोड़ा जेलस फील करता हूँ क्योंकि ये घर पे भी रहता है और संडे या कभी वीकेंड्स वगैरह पे आ जाता है यहाँ पे। बट आई रियली अप्रिशिएट, यू हैव टू गिव इट टू हिम कि आपसे मिलने आते हैं ये। हाँ, हर वीकेंड, हर संडे पे आते हैं आपसे मिलने के लिए। बहुत बढ़िया बात है इनकी ये। वो मैं वो पॉइंट बताया था ना कि आपको एक सिमिलर लोगों से मिलने हमेशा मिलते रहना पड़ेगा, तभी आप उस फेज़ में रहोगे। बिल्कुल। मुझे वही लगता है कि यहाँ पे बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए फूड्स का। और जब एग्ज़ाम प्रेशर आता है तो लोग अकेला फील बहुत करने लगते हैं, उस समय नीड होता है फ्रेंड का। यहाँ पे सिमिलर एग्जामिनेशन का सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो मिलने के बाद वो स्ट्रेस थोड़ा बहुत दूर ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो है फैक्टर। आप कैसे बैलेंस करते हो जो स्ट्रेस है, अकेलेपन का, या कहें होम सिकनेस? कभी ना कभी लगता तो होगा। कितनी बार फ़ोन करते हो घर में हर रोज़? मैं एक सुबह एक रात में करता हूँ। 2 बार? ठीक है, हाँ। सुबह मतलब जैसे टेस्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उससे पहले घर ज़रूर बात करता हूँ और फिर रात में सोने से पहले, ठीक है। फिर बाकी फ्रेंड अगर होम नहीं है तो फ्रेंड्स ही यहाँ पर हमारे होम है, ठीक है, तो उन्हीं से सारे हैप्पीनेस और सैड मोमेंट सारे शेयर करता हूँ, जो भी कुछ होता है लाइफ में, ठीक है। ऑल्दो घर के बाद यही लोग हैं जो है यहाँ हैं। That's very important. Thank you people for articulating this really important thing. घर के बाहर ये इकोसिस्टम है और यही एक जो फ्रेंड सर्कल है, ये बहुत बड़ी एक कहें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन जाता है। होम सिकनेस होती है, लेकिन साथ में हम ये नहीं कह रहे कि देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर होम। यहाँ पे जो एक इनका सर्कल बनता है को एस्पिरेंट्स के साथ, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, वेवलेंथ मैच करती है, साथ में प्रिपरेशन में फ़ायदा होता है इस चीज़ का, तो यही एस्पिरेंट्स की दुनिया बन जाती है और यही आगे उनको मदद करती है अपना जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वाला एपिसोड द ओरिजिनल एस्पिरेंट्स का पसंद आया होगा।
इजाज़त दीजिए मुझे रजत केन और मेरे साथी वरुण अरोड़ा को। आप देख रहे हैं द एज।